guys, our next topic is what is the social identity? Social identity refers to how individuals define themselves in relation to the groups they are part of. First of all, in social identity, we will discuss the group membership. Social identity is based on the groups to which individuals belong, such as your nationality, religion, your social class, your professional life, or your professions, right? Second thing is the social categorization. The social categorization is this involve classifying oneself and other into various social categories, which help simplify the social environment but can also lead to stereotyping. Definitely, I will tell you what is the stereotype belief systems and what is the stereotype in the next slide. So, social comparison. Definitely, when the groups together in one society, they compare themselves with each and other. Finally, shared characteristics. Social identity highlight the common traits. Remember, common traits, right? And values shared one with other group members, such as the such as the sense of belonging and unity, right? Behavior and norms. It influences behavior and norms as individuals often adopt the attitude and behaviors that are typical of their group. हर ग्रुप का एक अपना ट्रेट होता है, एक अपनी आइडेंटिटी होती है, एक टिपिकल बिहेवियर होते हैं. कुछ एग्रेसिव होते हैं, कुछ एक्सट्रोवर्ट होते हैं, कुछ इंट्रोवर्ट होते हैं, whatever. So, what is the stereotypes? The exact definition of the stereotype is stereotypes are widely held but oversimplified and fixed ideas or images about a particular group of people or things. They often involve generalization that may not accurately reflect reality. There are some key points of stereotypes, right? Number one, the definition is the stereotype are generalized beliefs about the characteristics, behavior, or attributes of a group. These beliefs are often based on limited information and can be inaccurate. क्योंकि बहुत से स्टीरियोटाइप बिलीफ सिस्टम या स्टीरियोटाइप बिलीफ्स जो होते हैं वो आपके रिलीजियस बिलीफ नहीं होते, वो कुछ सोसाइटी ने खुद भी बनाए होते हैं. तो ज़रूरी नहीं है कि स्टीरियोटाइप बिलीफ जो होते हैं वो आपके हमेशा ठीक ही हों. यहाँ पे मैं अगर एक छोटी सी एग्जांपल ऑफ मिथ्स की दूँ कि काली बिल्ली रास्ता काट गई, चूड़ियाँ टूट गई तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, तो ज़रूरी नहीं है कि ये ठीक हो. ठीक है. नेक्स्ट इज फॉर्मेशन. स्टीरियोटाइप्स कैन फॉर्म फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंसेस, cultural norms, media, and social interaction. They serve as cognitive shortcuts to simplify the complex social world. Stereotypes जो होते हैं वो आपकी personal experiences से भी जो होते हैं वो formulate हो जाते हैं. अगर मेरा किसी चीज़ के बारे में एक्सपीरियंस अच्छा नहीं या मैं अंधेरे में जा रही हूँ और मैं डर गई हूँ, तो ये ज़रूरी नहीं है कि कोई और भी जाए तो वो डर जाए, और उसको मैं एज अ बिलीफ सिस्टम कि अंधेरे में डर ही लगता है इम्पोज नहीं कर सकती किसी पे. ठीक है. और जैसे मैंने काली बिल्ली का कहा, अगर मेरा रास्ता काटा और उसके बाद मेरी गाड़ी का टायर अगर पंक्चर हो गया, तो ज़रूरी नहीं है कि वो मैं बिलीफ सिस्टम एक पूरा का पूरा बना दूं कि जब भी ये गुजरेगी तो आपके साथ कुछ बुरा ही होगा. वो मेरे एक्सपीरियंस से जनरेट एक चीज़ हो गई. इम्पैक्ट. Stereotype can influence how we perceive and interact with others, often leading to discrimination. They can affect individuals' self-esteem and behavior, especially when they internalize
these stereotype. Again, types of the stereotypes. Gender stereotypes might be suggested that men are more assertive while women are more nurturing, right? This is the gender stereotype, right? So these are the some key points of the stereotypes. What role do stereotypes play in social identity? Stereotypes play a significant role in shaping social identity by influencing how individuals perceive themselves and others within their social groups. So here are some key points of the stereotype impact on social identity. First of all, social categorization, right? Stereotype help people categorize other into groups based on perceived characteristic. They can simply social interaction, but also leads to over generalizations and misjudgments. Self perception. Individual may internalize stereotypes about their own social group, which can affect their self-esteem and behavior. Number 3 is group dynamics. Stereotype can influence group. Positive stereotype can strengthen the group identity and solidarity, while negative stereotype can create internal conflict and reduce group coherence, right? The next is intergroup relations. Stereotype affect how different social groups interact with each other. They can lead to discrimination and some social hierarchies and inequalities. And finally, stereotype threat. These occur when individuals fear being judged or treated based on a negative stereotype about their group. This fear can negatively impact their performance and participation in various activities. So, ये जो stereotype होते हैं sometimes किसी एक ग्रुप में कुछ और stereotype beliefs होंगे, किसी दूसरे ग्रुप के कोई और stereotype beliefs होंगे, तो उसकी वजह से समटाइम्स क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन हो जाती है. कभी कभी फिर ये जो एक ग्रुप होता है उसको प्रेफरेंसेस ज़्यादा मिल जाती हैं, इनइक्वालिटी के चांसेस होते हैं. तो ये जो स्टीरियोटाइप होते हैं ये नेगेटिव रोल भी प्ले करते हैं और पॉजिटिव रोल भी प्ले करते हैं. जैसे मैंने बताया कि जो पॉजिटिव स्टीरियोटाइप अगर कोई चीज़ होती है तो वो डेफिनेटली आपके ग्रुप का जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग करते हैं, आपकी पर्सनालिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं. लेकिन अगर वो नेगेटिव होंगे, कुछ ऐसे आपके स्टीरियोटाइप बिलीव्स, आपके मिथ्स, तो वो क्या होंगे, आपके ग्रुप के अंदर भी जो होगा वो कॉन्फ्लिक्ट होगा. और दूसरा ये कि आपकी पर्सनालिटी एग्जैक्ट वो ख़राब हो जाएगी. व्हाट इज़ द ग्रुप आइडेंटिटी? Group identity refers to a person's sense of belonging to a particular group. किसी एक ख़ास ग्रुप के साथ अपने आप को मुंसलिक कर लेना, जोड़ लेना, right? It involves the ways individuals define themselves in relation to the group they are part of and how these group influence their behavior and self-concepts. The first thing is sense of belonging. जो ग्रुप होता है, जब आप किसी ग्रुप में होते हो तो डेफिनेटली ग्रुप आइडेंटिटी आपको एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग देता है. मतलब कि आप उस एक स्पेसिफिक ग्रुप के साथ क्या हो, मुंसलिक हो. नंबर 2, सोशल इन्फ्लुएंस. द नॉर्म्स, वैल्यूज एंड बिहेवियर्स ऑफ द ग्रुप इन्फ्लुएंस इज इट्स मेंबर, शेपिंग देयर एटीट्यूड्स एंड एक्शंस. उस ग्रुप का जो इन्वायरमेंट होता है वो डेफिनेटली आपके एटीट्यूड्स, आपका बिहेवियर, आपके एक्शंस, आपकी पर्सनालिटी, इन सब चीज़ों को बना रहा होता है. यहाँ पे मैं एक बात ये ऐड करना चाहूँगी. देखो, कुछ ग्रुप्स होते हैं जो बहुत एक्सट्रीम होते हैं, कुछ होते हैं बहुत पोलाइट होते हैं. उनके अंदर मोस्टली लोग पोलाइट ही होते हैं. तो वो ग्रुप क्या करते हैं, उस चीज़ को बना रहा होता है. कुछ लोग टेबल टॉक को प्रेफर करते हैं,
कुछ लोग टेबल टॉक को प्रेफर नहीं करते। तो ये ग्रुप की आइडेंटिटी होती है, राइट। उसके बाद है सोशल कैटेगराइजेशन। जो लोग हैं, people categorize themselves and other into group based on shared characteristics. एक ग्रुप के मोस्टली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, सेम होंगे। तो कैटेगराइजेशन कैसे होती है ग्रुप्स की, ये वो वाला ग्रुप है, ये वो वाला, कभी कुछ सिंबल्स की वजह से, कभी किसी कलर की वजह से, मतलब इसका फ्लैग रेड है, इसका ग्रीन है, ये वो वाला ग्रुप है, ये कुछ सिंबल्स बना दिए जाते हैं, उनकी वजह से हम ग्रुप्स को कैटेगराइज कर सकते हैं, ये उसका ग्रुप है, ये उसका ग्रुप है। द नेक्स्ट थिंग इज इन ग्रुप वर्सेस आउट ग्रुप। Group identity often involves between the in-group, the group one belongs to, and out-group, those one does not belong to, right? कि एक ग्रुप है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ABCD हैं, 4 लोग, तो हम उनसे कैटेगराइज कैसे करेंगे, इन ग्रुप और आउट ग्रुप। AB जो है वो इस ग्रुप का पार्ट है, ये इन ग्रुप हो गया। CD इस ग्रुप का पार्ट नहीं है, ये क्या हो गया, आउट ग्रुप। होपफुली कि आपको समझ आ गई होगी बात। इमोशनल सिग्निफिकेंस। बीइंग पार्ट ऑफ आवर ग्रुप कैन हैव इमोशनल सिग्निफिकेंस, impacting self-esteem and providing support and validation. So the next slide is about components of culture. Components, beliefs and values. Description is the core principles and standard that guide behavior and decision makings, right? So the second is language and communication. Now description is methods of communication including spoken and written languages and non-verbal, right? Spoken languages आपको बताती हैं कि आप किस कल्चर का पार्ट हो। पंजाबी मोस्टली पंजाबी बोलेंगे, सिंधी बाय चांस कहीं भी बैठे होंगे एकदम सिंधी बोलने लग पड़ेंगे। उसके अलावा हर जो कल्चर होता है उसके सिंबल्स अलग होते हैं, उनका जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, जो उनके सिग्नल्स होते हैं या हाथों के इशारे जो होते हैं वो सब क्या होता है, जेस्चर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, ठीक है। नंबर 3 इज़ कस्टम एंड ट्रेडिशन। डेफिनेटली कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस मीन जनरेशन टू जनरेशन। कस्टम्स जो आपके रस्म व रिवाज होते हैं वो पास हो रहे होते हैं जनरेशन टू जनरेशन। समटाइम्स हम इन चीज़ को क्वेश्चन कर लेते हैं, लेकिन मोस्टली इन चीज़ों को हम क्वेश्चन नहीं करते, ये ऐसे ही होता चला आ रहा होता है। ओके, सो द नेक्स्ट इज आर्ट एंड लिटरेचर, क्रिएटिव एक्सप्रेशन सच एज म्यूज़िक। बहुत सी चीज़ें आप पोइट्री के ज़रिए कहते हो और वो बहुत अच्छा लगता है, उसकी जो उसकी सेंसिटिविटी होती है वो ज़्यादा हो जाती है जब आप पोइट्री में एक चीज़ को एक्सप्लेन करते हो। उसके बाद अगर आप पुरानी बिल्डिंग्स देखो तो उसके ऊपर कई तरह के वो सिंबल्स और कोई एरोस के निशान, कुछ गॉड गॉडेसेस, वो पूरी स्टोरी एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका लिटरेचर है, डेफिनेटली लिटरेचर के अंदर कई किस्म की आपकी स्टोरीज़ होती हैं जो बहुत सी चीज़ों को हाईलाइट कर रही होती हैं, एथिकल वैल्यूज़, मॉरल वैल्यूज़ को। इसके अलावा तसव्वुफ़ जो है लिटरेचर के अंदर वो बहुत ज़्यादा होता है। सो एंड विजुअल आर्ट्स, डेफिनेटली विजुअल आर्ट आपको विजुअलाइज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। सो सोशल रोल्स एंड रिलेशनशिप्स, डिफाइन रोल्स एंड इंटरेक्शंस विद फैमिली, कम्युनिटी एंड सोसाइटी। ये हर कल्चर का अलग भी हो सकता है, पठानों का अलग है स्टाइल कम्युनिकेशन का, फैमिली के अंदर इंटरेक्शन का पंजाबियों का अलग है। सो मटेरियल कल्चर, फिजिकल ऑब्जेक्ट्स एंड ओनली फिजिकल ऑब्जेक्ट्स यू कैन से। द मटेरियल कल्चर्स आपकी बिल्डिंग्स आ जाएंगी और आपका जो आर्किटेक्चरल डिज़ाइंस हैं वो आ जाते हैं, आर्ट्स आ जाती हैं, क्राफ्ट्स आ जाते हैं, ये सब, राइट। सो नेक्स्ट इज़ कल्चर एंड आइसबर्ग मेटाफर। आपके सामने ये जो पिक्चर नज़र आ रही है एक इनविजिबल कल्चर है और उससे पहले एक विजिबल कल्चर है। जो विजिबल कल्चर आपको नज़र आ रहा है उसके बैकग्राउंड पे
बहुत सी चीज़ें काम कर रही हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, world views. What is the world view? The world view is concept of God, concept of man and concept of universe, right? जैसा concept of God होगा वैसा ही concept of man होगा, वैसा ही concept of universe होगा. यहाँ पे मैं एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ. इस्लाम, द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड, अल्लाह एक है, और उस कॉन्सेप्ट के मुताबिक जो अल्लाह ने हम पे नाजिल किया हम उसको मानते हैं कि हमने मरने के बाद दोबारा एक डूम्सडे, एक जजमेंट डे होगा. हम अपने क्या हैं, आंसरेबल हैं, और उसी को हम सामने रखते हुए हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्स जो होता है वो बन रहा होता है कि दुनिया फ़ानी है या टेम्प्रेरी है, व्हाटएवर. अगर यहाँ पे मैं हिंदुइज़्म को लूँ तो उनका जो कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड है वो उनको क्या दे रहा है कि आप रीबर्थ, रीसाइक्लिंग, ठीक है, आपकी एक बर्थ होगा, दूसरा बर्थ होगा. वैसे ही उनका कॉन्सेप्ट ऑफ मैन डेवलप हो रहा है और वैसा ही उनका कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्स डेवलप हो रहा है. सो द वर्ल्ड व्यूज़ के अंदर इन शॉर्ट जो कॉन्सेप्ट ऑफ मैन एंड यूनिवर्स है ये पूरे का पूरा किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड पे, राइट. उसके बाद आपकी अजम्पशंस आ जाती हैं. ये रिलीजन को लेके भी हो सकती हैं, ये सोसाइटी को लेके भी हो सकती हैं, ये आपकी पर्सनालिटी को, अपनी फैमिली को, किसी को भी लेके हो सकती हैं. अब वो जो अजम्पशंस हैं वो क्या करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता आपके बिलीव्स को बना रहा होता है, ठीक है. बिलीव्स क्या होते हैं, आपके एटीट्यूड्स और आपका बिहेवियर डिफाइन कर रहा होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल कि मुझे अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरना चाहिए और मुझे सीधे रास्ते पर रहना चाहिए, तो डेफिनेटली मेरे एटीट्यूड्स, मेरे बिहेवियर, मेरी पर्सनालिटी उसी बिलीव के अकॉर्डिंग डेवलप हो रही होगी, ठीक है. फिर उसके बाद आपकी परसेप्शंस होती हैं और वैल्यूज़, जो आपकी वैल्यू सिस्टम बनता है, सब कुछ बनता है. इन सब के बाद ऊपर आपका एक विजिबल कल्चर उभर के सामने आता है जिसके अंदर आपकी ड्रेसिंग सेंस आ जाती है, आपके बिहेवियर्स आ जाते हैं, आपके सिंबल्स आ जाते हैं, आपके रस्म रिवाज आ जाते हैं, ये सब कुछ आ जाता है, ठीक है. तो पॉइंट ये है कि विजिबल कल्चर जो एक आपको सामने नज़र आता है सिर्फ वो नहीं होता, उसके पीछे बैकग्राउंड में बहुत सी थ्योरीज, बहुत सी हिस्ट्री, बहुत सी केस स्टडीज़, बहुत सी और चीज़ें जो होती हैं वो काम करती हैं, तो फिर जाके एक कल्चर आपके सामने नज़र आता है. सो द नेक्स्ट इज द रिलेशन बिटवीन सिविलाइजेशन एंड नेशन. दिस इज़ वेरी मच क्लियर. The difference between civilization and nation. Civilization can exceed the limit of national geography. Nation has relation with history, tradition and geography area of a particular culture. Civilization can exceed the limit of national geography. अगर यहाँ पे मुस्लिम सिविलाइजेशन है तो मुस्लिम सिविलाइजेशन किसी और कंट्री में भी हो सकती है, 7 समंदर पार भी हो सकती है, राइट. बट जो नेशन है वो एक कंट्री है, ठीक है, और उसका ताल्लुक उसकी हिस्ट्री से है, उसके ट्रेडिशन से है, उसकी जोग्राफ़ी से है, ठीक है, और वो बहुत ख़ास और स्पेसिफिक पर्टिकुलर कल्चर्स से उसका ताल्लुक होगा. सिविलाइजेशन की आगे एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल इस्लामिक सिविलाइजेशन, वेस्टर्न सिविलाइजेशन. नंबर 2, द अरब्स हैव देयर ओन कस्टम्स एंड कल्चर. The Malay civilization, their own traditions, right? So it's quite easy, right? So the end of the lecture.